Okay, so now we'll start with our systemic pediatrics. ऐसे systemic pediatrics तो नहीं होता, but generally देखो, we'll start with the systems now in the pediatric. So in the pediatric, the first system that we are going to discuss is the pediatric cardiology, that is CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. और इसमें से जितने रेडियोलॉजी के क्वेश्चंस भी होते हैं ना, वो भी यहाँ पे आपको कवर हो जाएंगे रिगार्डिंग दिस CVS सिस्टम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन रेडियोलॉजी आल्सो कम्स फ्रॉम दिस पार्ट ओनली. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन दे हैव गिवन इज अ न्यू बॉर्न ऑन एग्जामिनेशन हैज वीक लोअर लिम्ब पल्सेज एंड हाई बीपी इन द आर्म्स देन इन द लेग्स. ये एक बज वर्ड है. अगर आप एक बज वर्ड की कॉपी तैयार कर रहे हो तो जनरली यू कैन राइट दिस बज वर्ड देयर, दैट वीक लोअर लिम्ब पल्सेज एंड हाई बीपी इन द arms than in the legs. ये एक buzzword है, and this is directly going towards the diagnosis of COA, that is coarctation of the aorta. How? I'll tell you. Look, what is the likely diagnosis? वही question पूछा है. So this is going towards COA. Generally, coarctation of aorta में generally due to obstruction, the peripheral resistance is increased. Due to obstruction, the peripheral resistance will be increased. That will result in the increased BP in the upper limbs. That will result in increased BP in the upper limbs. The next is there will be less blood supply to the legs. As a result, there will be weak lower limb pulse. So this is generally going towards COA. और क्यों होता है COA में ऐसा, ये भी मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट देखो, TOF and TGA, these two, tetralogy of Fallot and generally transposition of great arteries, they both will cause generally central cyanosis. ठीक है, central cyanosis. Whereas the PDA, all of you know, that causes generally heart failure and continuous machine like murmur on auscultation is generally हार्ड देयर. सो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पीडीए में से यही पूछता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में से कि कंटिन्यूअस मैसिन लाइक मर्मर. ठीक है, रेडियोलॉजी में मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन विल कम इन मेडिसिन, है ना, या फिर पेडिया में. रेडियोलॉजी में जनरली कैसा अपीयरेंस होता है वो पूछते हैं. नेक्स्ट, लेट्स मूव विथ द नेक्स्ट वन, दैट इज which drug is given for the closure of PDA. So just now we talked about PDA, and a continuous machine like murmur is seen on generally auscultation, is heard on auscultation rather than seen on auscultation. So this is generally PDA. and PDA के लिए generally हम drug कौन सा यूज करेंगे, we will use NSAIDs like indomethacin for the closure of PDA. Look, it normally the PDA will be closing spontaneously within 2 to 4 days after the birth. ठीक है, 2 to 4 days में इसकी generally normal closing हो जाती है, but if it does not occur, we have to give generally indomethacin like drugs for the closure of PDA. In which of the following are generally the components of tetralogy of Fallot? अच्छा, ये क्वेश्चन है. All of the following are components of tetralogy of Fallot except. So let us see first of all the components of the tetralogy of Fallot. क्यों tetralogy बोलते हैं? Because चार चीज. टेट्रा मीन्स चार. देखो, टेट्रा मीन्स चार. सो जनरली हम पढ़ते हैं ना, मोनो, है ना, डाई, ट्राई, टेट्रा. सो दिस इज जनरली टेट्रा मीन्स जनरली फोर्थ, 1 2 3 और 4. सो टेट्रालॉजी ऑफ Fallot. So what does this tetralogy of Fallot mean here? So look, mono, di, tri and tetra. So generally tetralogy of Fallot में चार components होंगे. ठीक है, so चार components क्या क्या हैं? Subpulmonic stenosis, concentric right ventricular hypertrophy, VSD that operates right to left, that is due to the right ventricular hypertrophy, and generally the overriding of the aorta. So four things: subpulmonic stenosis, concentric right ventricular hypertrophy, ventricular septal defect and overriding of the aorta. These four things comprises of generally the tetralogy of Fallot. So question में देखो, overriding of generally aorta है यहाँ पे. Tricuspid stenosis, so this is not in the options. This is generally not in the component. So this is answer, tricuspid stenosis, क्योंकि right ventricular hypertrophy of course it is there, ventricular septal defect is also there. So this tricuspid stenosis नहीं होगा वहाँ पे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. Generally severity of cyanosis in Fallott's physiology is best decided by. So severity of generally, यहाँ पे देखो चार कंपोनेंट, इन चार कंपोनेंट में से सबसे ज़्यादा कौन सा कंपोनेंट जनरली will decide the severity of the साइनोसिस. ठीक है, साइनोसिस की सीवियरिटी के लिए विल गो विथ सबपल्मोनिक स्टेनोसिस. हाउ? आई विल टेल यू. इट इज द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द साइनोसिस इन टेट्रालॉजी ऑफ Fallot बिकॉज जनरली इट विल जनरली डिसाइड द अमाउंट ऑफ ब्लड एंटरिंग इनटू द लंग्स. अगर जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो साइनोसिस हो जाएगा. सो एज द साइनोसिस इज जनरली एज द अमाउंट ऑफ ब्लड गोइंग टू ब्लड एंटरिंग टू द लंग्स इज डिसाइडेड बाय दिस subpulmonic stenosis. That's why it is the major deciding factor in general the Fallot's physiology for the severity of cyanosis. आगे देखो, most common cardiac anomaly associated with Noonan syndrome. So Noonan syndrome से most common cardiac anomaly, I have already told you about the Noonan syndrome and some
कार्डियक एनोमिलिटीज एंड देयर एसोसिएशन ऑलरेडी इन द जेनेटिक्स वाला चैप्टर, वहाँ पे भी मैंने आपको जनरली सारी चीज़ें बताई हुई थी. बट लुक हेयर अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नथिंग बट द पल्मोनिक स्टेनोसिस. सो मोस्ट कॉमन जनरली टर्नर सिंड्रोम, वही ना पढ़े थे कि जनरली कि टर्नर सिंड्रोम के सारे फीचर्स प्लस जनरली पल्मोनिक स्टेनोसिस अगर आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्नर सिंड्रोम के सारे फीचर प्लस पल्मोनिक स्टेनोसिस, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स जनरली दिस इज जनरली गोइंग टुवर्ड्स नूनान सिंड्रोम. आगे देखो, कंटिन्यूअस मर्मर इज हर्ड इन, सो दिस कंटिन्यूअस मशीन लाइक मर्मर, जस्ट हम बात कर रहे थे, दिस इज हर्ड इन patent ductus arteriosus. Look, continuous murmur is heard in PDA due to the huge pressure difference between aorta and pulmonary artery. There is a huge pressure difference between the aorta and the pulmonary artery. As a result, it is heard both in the systole and diastole and peaks at S2, और both systole diastole दोनों में सुनाई देगा, तो हमको क्या लगेगा, कंटिन्यूअस है, बीच में रुक ही नहीं रहा. So this is continuous machine like murmur. This is generally seen in the case of patent ductus arteriosus. Next is causes of continuous murmurs. So the main causes of continuous murmurs in PDA will be generally, पीडीए बता रहा हूँ, द मेन कॉजेज ऑफ जनरली दिस कंटिन्यूअस मर्मर, या फिर कंटिन्यूअस मर्मर दिख रहा है आपको जनरली, तो जनरली आप क्या करोगे, डीडी तो निकालोगे कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है. सो दैट इज नथिंग बट द, एक हो सकता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, नेक्स्ट इज रप्चर्ड साइनस ऑफ वाल्साल्वा एन्यूरिज्म, नेक्स्ट इज कोअक्टेशन ऑफ aorta, सिस्टेमिक आर्टेरियो वीनस फिस्टुला, पल्मोनरी आर्टेरियो वीनस फिस्टुला, मेमोरी सुफल एंड जनरली वीनस हम. ये आप देख लो एक बार फिगर, कंटिन्यूअस जनरली मशीन लाइक मर्मर्स. आगे चलिए करते हैं, द इनोसेंट मर्मर इज बेस्ट हार्ड इन चिल्ड्रेन एट. सो व्हाट इज दिस इनोसेंट मर्मर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द टर्म दैट इज इनोसेंट मर्मर. अभी हमने पढ़ा मशीन लाइक कंटिन्यूअस मर्मर, यानी कि सिस्टोल डायस्टोल दोनों में सुन रहा है, बीच में रुक ही नहीं रहा है. सो दिस इज कंटिन्यूअस जनरली मशीन लाइक मर्मर सुन रहा है. नेक्स्ट द term is innocent murmur. So let's see what is this innocent murmur. मर्मर भी इनोसेंट हो सकता है, आप लोग तो नहीं हो, बट जनरली मर्मर कैन बी इनोसेंट. लुक, मर्मर्स इन चिल्ड्रन व्हिच आर नॉट एसोसिएटेड विथ सिग्निफिकेंट हीमोडायनेमिक एबनॉर्मलिटीज. ठीक है, मर्मर्स तो है बट सिग्निफिकेंट जनरली क्या, हीमोडायनेमिक एबनॉर्मलिटीज नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे जनरली इनोसेंट मर्मर. वो मर्मर क्या है, इनोसेंट है, कोई भी दिक्कत नहीं करता. सो ही इज वेरी इनोसेंट. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन इनोसेंट मर्मर इज अ मीडियम पिच्ड वाइब्रेटरी और म्यूजिकल रिलेटिवली शॉर्ट सिस्टोलिक इजेक्शन murmur which is heard best along the left lower and mid sternal border and has no significant radiation to the apex, generally apex, base or the back. This is generally the innocent murmur. So देखो, the innocent murmur is best heard in children at generally the left lower sternal border, left lower mid sternal border. Which of the following is a feature of tetralogy of Fallot? टेट्रालजी ऑफ फैलट के चार कंपोनेंट्स हमने ऊपर पढ़े. नाउ दे आर आस्किंग अस अबाउट द फीचर ऑफ टेट्रालजी ऑफ फैलट. सो लुक, टेट्रालजी ऑफ फैलट में जनरली मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइनोसिस विथ, जनरली टेट्रालजी ऑफ फैलट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइनोसिस विथ नॉर्मल साइज्ड हार्ट. विथ नॉर्मल साइज्ड हार्ट जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइनोसिस है जनरली बच्चों में, दैट इज जनरली गोइंग टुवर्ड्स जनरली टेट्रालजी ऑफ फैलट. नेक्स्ट इज जनरली मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइनोसिस विथ लेफ्ट साइडेड इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट. अगर हार्ट नॉर्मल है तो टेट्रालजी ऑफ फैलट, एंड अगर हार्ट बड़ा हुआ है, लेफ्ट हार्ट नॉर्मल बड़ा हुआ है एंड जनरली क्या हुआ है कि साइनोसिस इज देयर, द मोस्ट कॉमन कॉज देयर विल बी जनरली ट्राइकुस्पिड एट्रेसिया. नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फीचर टेट्रालजी ऑफ फैलट. सो जनरली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर नो, पैन सिस्टोलिक मर्मर नो, पल्मोनिक स्टेनोसिस. मतलब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल साइड हार्ट. सो जनरली सीटी एंगल जो होगा, सीटी रेशियो एंड नॉट एंगल, सो द नॉर्मल विल बी सीटी रेशियो. सो सीटी रेशियो विल बी नॉर्मल इन केस ऑफ जनरली टेट्रालजी ऑफ फैलट. मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट डायरेक्टली पूछ रहा है, जस्ट गो विद VSD, दैट इज VSD. और उसमें अगर मेम्ब्रेनस दिया, VSD में भी किस टाइप के, मेम्ब्रेनस टाइप का, मस्कुलर टाइप का, किस टाइप का, सो जनरली गो विथ मेम्ब्रेनस VSD. सो मेम्ब्रेनस VSD इज द जनरली द मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट इन चिल्ड्रन. ये देखो, ऑस्टियम सेकेंडम, ये VSD है ही नहीं ऑप्शन में, दिस इज जनरली ASD. इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ASD, ऑस्टियम सेकेंडम. ऑस्टियम प्राइमम इज जनरली एसोसिएटेड विथ डाउन सिंड्रोम, वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज एसोसिएटेड विथ डाउन syndrome. Which of the following is an acyanotic heart disease? So let's see all the generally list of cyanotic and acyanotic heart disease.
असाइनोटिक हार्ट डिजीज के बारे में बात करूँ तो PDA, VSD, ASD दे ऑल आर जनरली असाइनोटिक हार्ट डिजीज. दे प्रेजेंट विद रिकरेंट न्यूमोनिया एंड जनरली congestive heart failure. So these are PDA, VSD and generally ASD. They all are असाइनोटिक हार्ट डिजीज. ट्रीटमेंट क्या होगा? PDA के लिए इंडोमेथासिन और सर्जिकल लाइगेशन, VSD दैट इज डैक्रॉन पैच एंड जनरली ASD के लिए हम क्या यूज करेंगे? जनरली ऑक्लूजन डिवाइस. ये पूरा का पूरा ये जो इतना सा स्लाइड है ना, ये बस इतना सा स्लाइड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. पूरा का पूरा इसमें अगर समझो तो CBS सिस्टम जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टॉपिक में से, वो सारा का सारा एक ही जगह पे. सो दिस स्लाइड यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड जस्ट रिवाइज इट ट्वाइस डेली, क्योंकि इसमें से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपको, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज जनरली साइनोटिक हार्ट डिजीज. सो साइनोटिक हार्ट डिजीज में अगर हम देखेंगे तो TOF दैट इज टोटालजी ऑफ फैलट, tricuspid atresia, transposition of the great arteries. It generally presents with cyanosis, state spells and failure to thrive. On examination, the child has cyanosis with single S2. CXR in TOF shows boot-shaped heart or generally core in sabu. Next, generally ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट विल बी मॉडिफाइड ब्लैलॉक टॉसिंग शंट. एंड द TGA के लिए जनरली हम क्या यूज करेंगे? एट्रियल सेप्टोस्टमी फॉलोड बाय जनरली स्विच ऑपरेशन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है. नेक्स्ट देखो ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज. ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज की अगर मैं बात करूँ, सो कोआक्टेशन ऑफ ऑर्टा, इट जनरली प्रेजेंट्स विथ हाइपरटेंशन, है ना, इट प्रेजेंट्स विथ हाइपरटेंशन एंड ट्रीटमेंट विल बी बैलून डायलेटेशन विथ स्टेंटिंग. सो कोआक्टेशन ऑफ ऑर्टा इज जनरली ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज. उतना आपको याद रखना है. नेक्स्ट लेट्स मूव. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? असाइनोटिक हार्ट डिजीज. सो असाइनोटिक हार्ट डिजीज विल बी जनरली द PDA, VSD एंड ASD. बोथ ऑफ दीज आर जनरली, ऑल थ्री ऑफ दीज आर जनरली द असाइनोटिक डिजीज. TGA क्या हो जाएगा? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, इट इज अ साइनोटिक, है ना, साइनोटिक हो जाएगा. कोआक्टेशन ऑफ ऑर्टा क्या हो जाएगा? जनरली आपको कोआक्टेशन ऑफ ऑर्टा हो जाएगा आपको ऑब्स्ट्रक्टिव, है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव. एंड द नेक्स्ट TOF विल बी साइनोटिक अगेन, साइनोटिक. ठीक है, इतना आपको याद रखना. ऑल आर सीन इन कावासाकी डिजीज एक्सेप्ट. सो लुक द लास्ट क्वेश्चन इन दिस, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जनरली कावासाकी डिजीज. सो एक पेज में हम कावासाकी डिजीज कर लेते हैं, एक स्लाइड में कंप्लीट कावासाकी डिजीज करते हैं, जहाँ से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे. सो लुक, कावासाकी डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट. मीडियम वेसल डिजीज, नॉट सीन इन एडल्ट्स. कावासाकी जनरली नॉट सीन इन एडल्ट्स. 80% of the patients who present with Kawasaki disease are less than 4 years. ये आपको याद रखना है. देखो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. सो फॉर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कावासाकी में जनरली कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट होता नहीं. द डायग्नोसिस इज जनरली क्लिनिकल डायग्नोसिस. सो क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए व्हाट आर सम एसेंशियल क्राइटेरियाज दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड टू बी अ जनरली कावासाकी डिजीज? फीवर फॉर एटलीस्ट 5 days. एटलीस्ट 5 days के लिए फीवर होना चाहिए. इरिटेबिलिटी विल बी मोर आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ फीवर विथ एनी 4 out of 5. सो ये देखो नीचे जो एडिशनल क्राइटेरिया, एसेंशियल क्राइटेरिया में फीवर एटलीस्ट फॉर 5 days एंड एडिशनल क्राइटेरिया में हम इसको याद करेंगे रीमा से. ठीक है, जनरली 5 एडिशनल क्राइटेरिया है जिसमें से 4 प्रेजेंट होने चाहिए और एक एसेंशियल क्राइटेरिया प्रेजेंट होना चाहिए. सो रीमा करके याद करेंगे. सो R फॉर रैश, दैट इज पोलीमॉर्फस नॉन वेसिकुलर रैश. ठीक है, पोलीमॉर्फस नॉन वेसिकुलर. इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, ओके, अभी छोटा कर दूंगा, बट अभी जस्ट देख लो. ठीक है, सो जनरली, है ना. सो दिस रैश, R फॉर रैश, दैट मस्ट बी पोलीमॉर्फस नॉन वेसिकुलर रैश. E for edema, that is most abundant in generally the hands and the feet. The edema will be seen in the hands and the feet. Next is generally E for generally कंजंक्टिवाइटिस. आई में E for आई में जनरली क्या? कंजंक्टिवाइटिस, नॉन प्यूरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस. यम फॉर जनरली म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट, दैट इज स्ट्रॉबेरी टंग और क्रैक्ड लिप्स. ठीक है, स्ट्रॉबेरी टंग और जनरली क्रैक्ड लिप्स. ए फॉर जनरली एडिनोपैथी, दैट इज सर्वाइकल यूनिलैटरल प्लस नॉन जनरली सुपुरेटिव एंड नॉन टेंडर जनरली एडिनोपैथी. ठीक है, नॉन टेंडर एडिनोपैथी. सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स योर जनरली कावासाकी डिजीज. इसमें से जनरली 1 2 3 4 5 है, इसमें से 4 होने चाहिए और ये एक एसेंशियल क्राइटेरिया होना चाहिए. नेक्स्ट देखो यहाँ पे वही चीज़ देखा गया है, यहाँ पे है ना, रेड क्रैक्ड लिप्स वगैरह दिख रहे हैं, जनरली हाई फीवर दिख रहा है, जनरली रैश इन्वॉल्विंग मच ऑफ द जनरली बॉडी पार्ट. आगे देखो रेड स्वोलन फीट, है ना, जनरली रेड स्वोलन हैंड्स एंड जनरली रेड एंड जनरली ब्लड शॉट आइज, रेड ब्लड शॉट आइज. ठीक है, सो आगे देखो ब्लड शॉट ही है ना, हाँ ये.
Next, the inflammatory markers in Kawasaki disease is generally thrombopoietin. So inflammatory marker in Kawasaki disease, this can be asked है ना. So inflammatory marker in the Kawasaki disease is generally thrombopoietin, due to which thrombocytosis seen in generally the second third week of general illness. इसी की वजह से जनरली क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइटोसिस इज सीन इन द सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ द इलनेस. नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका गया है, ठीक है, नीट पीजी में पूछा गया क्वेश्चन है. कॉम्प्लिकेशन की मैं बात करूँ, सो कॉम्प्लिकेशन में देयर विल बी कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म seen in 25% of the cases. The complications of generally Kawasaki disease, the most common complication will be coronary artery aneurysm, and the next will be acute myocardial infarction. ट्रीटमेंट क्या यूज करोगे? IVIG, स्टीरॉइड्स और जनरली एस्पिरिन. स्टीरॉइड्स, ये आपको एस्पिरिन और IVIG वाला क्वेश्चन अभी नेक्स्ट में पूछा जाएगा. सो इसको थोड़ा आप क्या कर देते हैं, हमारा काम हो गया तो इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं. ओके, चलिए. सो नेक्स्ट इज आवर, सो यहाँ पे क्या है देखो, ऑल आर सीन इन कावासाकी डिजीज, माइट्रल रिगर्जिटेशन, मायोकार्डाइटिस, इस्केमिक हार्ट डिजीज, ऑल आर सीन एक्सेप्ट